اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل سے ہم پر رحم کرتا ہے اور تو نے ہمیں برکت دی، ہمیں آزادی دی کہ ہم کسی بھی جگہ پر تیری حضوری میں جمع ہو سکتے ہیں، اور جہاں پر بھی تیرے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اپنا تخت وہاں پر لگاتا ہے۔ ہم تیری حضوری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم برکت پانے کو ہیں۔ خدا اس وقت جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں یا جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوں گے، ان سب کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں۔ خدا پاک روح تو ہمیں معمور کر، ہمارے خیالات اور ذہان کو تو خداوند کی طرف لگا، تاکہ ہمارے ذہن، ہمارے دل خدا کے کلام کی طرف لگ جائیں، اس کی باتیں ہمارے لیے برکت کا باعث ہوں، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اور آج خداوند جتنے لوگ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری کے ساتھ یہاں پر عبادت کے لیے آئے ہیں، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تسلی، اطمینان، ایمان کی مضبوطی اور معجزے کے ساتھ واپس لوٹیں۔ خداوند اپنے پاک روح کا مسا یہاں پر موجود ہر ایک شخص کو دے، تاکہ پاک روح کے مسا اور معموری کے وسیلے سے آج کی اس عبادت کے وسیلے سے ہم یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کی رہنمائی کر، دنیوی سوچیں اور فکریں یسوع کے نام سے ہمارے ذہن سے دور ہو جائیں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमुआ है और हम अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हुए मसीही ईमान का और मसीही अकायद पर अपनी मजबूती का इजहार करते हैं। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा काबिल मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदाबंद की तारीफ में हम ज़बूर 91 गाएंगे। ज़बूर नंबर 91, पहला हिस्सा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। ज़बूर नंबर 91, ज़बूर नंबर 91, पहला हिस्सा।
अपने सरों को झुकाएं और भाई डेविड अजीम इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदावन ने ये फजल किया कि आज उसके मुक़द्दस दिन पर हम इकट्ठे हो सकें। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदावन फजल करे और हम महफूज रहें, हमारी कलीसिया महफूज रहे और इस तरह से कोरोना वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो, चर्चेस बहाल रहें, दुनिया बहाल हो सके, मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हो सकें, लोगों को रोज़गार मिल सके। इन बातों को खुदा की हुजूरी में हम मिलकर रखेंगे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, पाकिस्तान में भी अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत भी करे, खुदावंद अपने लोगों को एक जिंदा कलीसिया बनाए, गवाही देने वाली कलीसिया बनाए, ताकि इस मुल्क में मसीह की बादशाही की मुनादी हमारी ज़िंदगियों से हो सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरी बारगाह में आते हुए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी सारी रहमतों, नेमतों और बरकतों के लिए शुक्रगुजार हैं। वापस पानी आपने हम सब को यहाँ पर फ्राहम किया ताकि हम सब मिलकर वापस पानी बर्रे के लहू की जय जयकार कर सकें। और खुदाए पाक जी यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सब अपने हाथ उठाकर आपको वेलकम करते हैं। इस जगह पर फजल कीजिएगा, रहनुमाई फरमाइएगा ताकि वापस पानी हम सब मिलकर खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दे सके। ऐ बाप तेरे पास आए हैं और तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। ऐ वापस पर सबसे पहले वापस पानी हम इस FC कॉलेज की इंतज़ामिया के, FC कॉलेज के तमाम वापस पानी को जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, वापस पानी टीचर्स हैं और दूसरे सब पर तेरी बरकत, तेरा फजल भरा हाथ मांगते हैं। FC कॉलेज की पूरी टेरिटरीज में वापस पानी तेरा फजल भरा हाथ मांगते वापस पानी, और ये हमेशा आपकी हिफ्ज़ व अमान में रहे वापस पानी। और मैं दुआ करता हूँ वापस पानी यीशु मसीह नासरी के नाम से, ख़ास तौर से पूरी दुनिया में वापस पानी कोरोना वायरस के लिए वापस पानी इस वक्त वापस पानी कोरोना वायरस का जहाँ जहाँ भी वापस पानी जहाँ जहाँ भी उसका वापस पानी का असरात है वापस पानी यीशु मसीह नासरी के नाम से है वापस पानी कोरोना वायरस के इख्तियारात इस ज़मीन से ख़त्म हो वापस पानी। और मालिक मेरे परवरदिगार खुदा ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं। आपकी एक ही आवाज़ से वो इस दुनिया से जा सकता है। इसलिए हम सब मिलकर मिन्नत करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि कोरोना वायरस यहाँ से इस हमेशा हमेशा के लिए जाए वापस पानी, और तू वापस पानी सारे दुनिया के मुल्कों को वापस पानी बरकत देना, फजल फरमाना, रहम करना। और ख़ास तौर से मैं दुआ करता हूँ वापस यीशु मसीह नासरी के नाम से वापस पानी इस जगह पर वापस पानी तेरा फजल भरा हाथ मांगता हूँ, करम कर और रहम कर वापस पानी। और वापस पानी दुआ करते हो वापस पानी यीशु मसीह नासरी के नाम से फजल फरमा, करम कर और बरकत दे वापस पानी। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वापस पानी, जो अपनी अपनी मुरादें लेकर आए हैं वापस पानी यीशु मसीह नासरी के नाम से है वापस पानी बामुराद होकर जाए वापस पानी। तेरा फजल भरा हाथ उन पर रहे वापस पानी, और खुदा तो उनको बरकत देना, रहम करना और फजल फरमाना और बड़ी बरकत देना। ऐ मेरे मालिक परवरदिगार तेरा फजल भरा हाथ हम सब पर है, हमारी मदद करना, हमारी रहनुमाई फरमाना और करम करना वापस पानी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का सारे का सारा वापस सेशन पाकरू जी आपके हाथ में है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। ज़बूर नंबर 9, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। ज़बूर नंबर 9, ज़बूर नंबर 9, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा।
ایک بار پھر دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم یہ شفائیہ دعا کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایماندار اکٹھے اور یسوع کے نام سے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ہمیں سے ہر ایک کے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو خدا کی حضوری میں کھولیں، اپنے لیے اور اپنے گھرانوں کے لیے شفا مانگیں، صحت و تندرستی مانگیں گے، اور اسی طرح سے ہماری کلیسیا میں جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں فتح ہے، تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے سے شفا ہے، معجزات ہیں، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو یسوع کے وسیلے سے سنتا ہے۔ اسی ایمان میں خداوند آج ہم ایک خاندان کی حیثیت سے جمع ہیں، کیونکہ یسوع کا بدن
होते हुए हम एक दिल होकर यहाँ पर इकट्ठे हुए ताकि तेरी इबादत कर सके, तुझसे मांग सके। खुदावंद अपने दिलों को तेरी हुजूरी में खोलते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू ताकि तेरे छूने की कुदरत से हम बरकत पाएं। तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद हम शिफा पाएं। हमारे जिस्म में से हर किस्म की कमजोरी, तकलीफ, परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। यहाँ पर जितने लोग किसी तकलीफ या बीमारी के साथ बैठे हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जिस्मानी तकलीफ है, दर्द है, तेरे बेटे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं जाती रहे। किडनी की प्रॉब्लम है वो भी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू हर एक को छू, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से सभी पाक हो जाएं। तेरी पाक आग जो धोती है, पाक करती है, तो अपनी आग की कुदरत से हर एक के जिस्म को धो और पाक कर ताकि हमारी हर एक तकलीफ और कमजोरी और बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत से नहीं, अपने इख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में फतह है। इसलिए हम अपने खुदावंद यीशु के नाम से हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से खत्म हो जाए और हम में से हर एक तेरी कुदरत का तजर्बा करे, हम में से हर एक तेरे मौजज़े को अपनी जिंदगी में वसूल करे। खुदावंद तू हर एक को छू और बरकत दे। हमारी कलीसिया में जितने बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद तू अपने बेटे यीशु के नाम से उन्हें छू और शिफा बख्श दे। हर किस्म की पेचीदगी यीशु के नाम से जाती रहे और तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी कुदरत जाहिर हो, तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरी बरकत उन्हें मिले ताकि तेरी शुक्रगुजारी हो सके। तेरा दुआ की जाए, उन्हें तेरी हुजूरी में रखते हैं। खास तौर पर खुदावंद बेटी माहम के लिए, शिनाया के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, भाई खुरम अनवर के लिए, इसी तरह से मिसेज एल्डर बशीर के लिए और खुदावंद भाई एमैनुएल के लिए दुआ करते हैं। भाई नईम तबस्सुम के लिए दुआ करते हैं। भाई नदीम के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद मिसेज नजीर जियाई के लिए दुआ करते हैं। भाई कमाल विल्सन के लिए और मिसेज अलिशबा कमाल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा बख्श दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब की जिंदगी में मुआवजा हो, तेरी कुदरत का तजुर्बा हो। खुदावंद तू छू और शिफा दे, तू फजल और रहम कर और इन सब की जिंदगी में मौजज़ात हों ताकि खुदावंद हम तेरी कुदरत को जान सकें। खुदावंद कोरोना के लिए एक बार फिर दुआ करते हैं कि तेरे बेटे यीशु के नाम से कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ये वायरस हमेशा के लिए पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। खास तौर वो ममालिक जो आज भी इस बीमारी की लपेट में है और शिद्दत के साथ ये बीमारी फैल रही है, उन्हें ममालिक के लिए दुआ करते हैं। खास तौर पर इंडिया के लिए दुआ करते हैं, अमेरिका के लिए दुआ करते हैं और जिन ममालिक में दोबारा से कोरोना शुरू हुआ है खुदावंद वहाँ पर दुआ करते हैं तू फजल कर, तू रहम कर ताकि दुनिया बहाल रहे, मुआशी सरगर्मियाँ बहाल रहें, लोग बरकत पाएँ। खुदावंद हमारी कलीसिया को भी महफूज रख, हमारी कलीसिया का हर एक फर्द महफूज हो जाए। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आज हम दोबारा से शायर बानी में शामिल होंगे और शायर बानी के हवाले से मैंने गुज़श्ता अतवार आपसे दरख्वास्त की। हमने उससे गुज़श्ता अतवार यानी महीने के आखिरी अतवार में जब शायर बानी की तो हम मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो नहीं कर सके, लेकिन गुज़श्ता अतवार मैंने दरख्वास्त की थी कि इस दफ़ा हम SOPs को फॉलो करेंगे और सिर्फ एक एक लाइन जो है वही लेने के लिए आएगी और जब वो चले जाएंगे फिर उसके बाद अगली लाइन आए ताकि लंबी लाइन और फासला जो है वो मेंटेन रख सकें, हम लंबी लाइन ना हो सके। इसलिए एक एक लाइन जो है सिर्फ वही आज शायर बानी के लिए आए और फिर उसके बाद हम दूसरी लाइन, थोड़ा सा वक्त हमारा ज़्यादा लगेगा लेकिन हम SOPs को फॉलो करने चाहते हैं। गुज़श्ता अतवार भी मैंने ये आपके बात सामने रखी थी कि मसीही लोग डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले लोग हैं, मसीही लोग अथॉरिटीज़ को, पॉलिसीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं और हम खुदा के घर में खुदावंद की वफादारी के लिए, खुदावंद की ज़िम्मेदारी के लिए आते हैं तो उस वक्त हमें हर तरह से बातों को, यीशु की बातों को भी और जो हमारे लिए हमारी बेहतरी के लिए बातें मुकर्रर की गई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। इसलिए इस बात को जहन में रखते हुए कि हमने अपने ईमान के मुताबिक डिसिप्लिन को कायम रखना है, ज़रूर SOPs को फॉलो करें और अपनी बारी के साथ अपनी लाइन से उठकर सिर्फ आएँ ताकि वो चले जाएं तो हम दूसरों को शायर बानी में शामिल कर सकें। शादी की पुकार है वो आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। दाऊद फयाज मसीह, उम्र 24 साल, हालत कमवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाला की शादी सना एजाज, दुख्तर एजाज मसीह, उम्र 23 साल, हालत कमवारी। वर्कशॉप स्टॉप
वाल्टन रोड की रहने वाली के साथ 9 अक्टूबर 2020 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। नए अहदनामे में से अमाल की किताब और उसका 24वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। The Book of Acts, chapter 24, verses 24th to 27th। अमाल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे और इस तिलावत में हमारे रहनुमा मिसेस नादिया करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल की किताब रसूलों के अमाल की किताब 24वां बाब 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और चंद रोज़ के बाद फीलिक्स अपनी बीवी दरुसिला को जो यहूदी थी साथ लेकर आया और पलूस को बुलवाकर उससे मसीह यीशु के दीन की कैफियत सुनी। और जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था तो फिलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया कि इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पलूस से कुछ रुपए मिलने की उम्मीद भी थी, इसलिए उसे और भी बुला कर उसके साथ गुफ्तगू किया करता था। लेकिन जब 2 वर्ष गुजर गए तो पुरकियुस फेस्तुस फिलिक्स की जगह मुकर्रर हुआ और फिलिक्स यहूदियों को अपना एहसानमंद करने की गर्ज से पलूस को कैद ही में छोड़ गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए से बरकत है। खुदा के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूह में ज़बूर 85 गाएंगे। ज़बूर नंबर 85, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। ज़बूर नंबर 85 और उसके पहले 3 मिसरे हम गाएंगे। ज़बूर 85 दूजा हिस्सा।
आए हम दुआ करें। खुदा हम तेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं ताकि तेरा पाक रूह बोले। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से तो हम सबको बरकत दे। आज का कलाम हमारे लिए तब्दीली का बायस हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज हम अमाल की किताब में से एक और नए वाक़े को पढ़ रहे हैं जिसमें पौलुस रसूल को एक रूमी गवर्नर के सामने पेश होने का मौका मिला। हम आहिस्ता आहिस्ता इस किताब में से उन वाक़यात में इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कलीसिया की तारीख को भी बयान करते हैं, कलीसिया के बढ़ने को बयान करते हैं। उन लोगों ने, रसूलों ने, मुक़द्दसीन ने जिन्होंने इस कलीसिया के बढ़ने में अपना किरदार अदा किया, उनके बारे में सीख रहे हैं और किस तरह से ये वाक़यात रूनमा हुए उनकी तरतीब को भी सीखते जा रहे हैं। मैं तरतीब को आपके सामने दोबारा से रखूँगा कि हमने पौलुस रसूल के मिशनरी सफ़र जो हैं उनके बारे में हम सीख रहे थे। पहले सफ़र के हवाले से भी हमने सीखा, वो अमाल की किताब के 13वें बाब से लेकर 15वें बाब तक है, 15वें बाब की 35वीं आयत तक। उसके बाद पौलुस दोबारा से अंताकिया से सफ़र का आगाज़ करता है, यरूशलेम आता है, अंताकिया से दोबारा से दूसरे मिशनरी सफ़र का आगाज़ करता है अमाल की किताब 15वां बाब और उसकी 41वीं आयत से, जहाँ से हमने सीखा था कि पौलुस और बरनबास के दरमियान झगड़ा हो गया। वो दूसरा मिशनरी सफ़र का आगाज़ है जब पौलुस ने दोबारा से दूसरे मिशनरी सफ़र का आगाज़ किया। और 18वें बाब की 22वीं आयत तक दूसरा मिशनरी सफ़र मुकम्मल करके पौलुस फिर वापस आता है। बार बार वापस आने का मकसद कलीसिया का जो सेंटर था यरूशलेम, उसमें आकर दूसरे रसूलों को, दूसरे अपने हम खिदमत भाइयों को रिपोर्ट करना था और बताना था कि मैंने क्या किया है, कलीसिया कहाँ पर कायम हुई हैं, कलीसियाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। और फिर उसके बाद दोबारा से तीसरे मिशनरी सफ़र पर रवाना होते। ये अमाल की किताब के 18वें बाब में हम देखते हैं, 18वें बाब से लेकर 21वें बाब तक तीसरा मिशनरी सफ़र। और तीसरे मिशनरी सफ़र के इख्तिताम पर पौलुस इफिसस में, जो कि आसिया का सूबा था, आसिया का शहर था, सूबा आसिया का, उसमें पौलुस रसूल ने इफिसस के लोगों के सामने आखिरी दफ़ा तकरीर की, उनसे बातचीत की, उनसे कहा कि तुम मेरा मुंह फिर देखने ना पाओगे। तो लोग उन्होंने रोकर उसे रुखसत किया। और यरूशलेम में दाखिल होने से पहले पौलुस रसूल के बारे में नबूवत की गई। सबसे पहले तो एक जजीरे पर जब ये रुके तो पौलुस रसूल को एक और शागिर्द मिले जो 7 रोज उनके साथ रहे। और उन शागिर्दों ने रूहुल कुदस की हदायत से पौलुस को मना किया कि तू यरूशलेम में ना जा। फिर उसके बाद एक और नबी इकबस, उसने आकर पौलुस रसूल का कमरबंद लिया और उससे अपने हाथ और पांव बांधे और उसने कहा कि रूह फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसे इसी तरह बांधकर यरूशलेम में यहूदी लोग यरूशलेम में बांधेंगे और गैर कौमों के हवाले कर देंगे। इस बात पर लोगों ने मुकद्दस पौलुस रसूल को रोकना चाहा कि ये यरूशलेम में ना जाए। ये तीसरे मिशनरी सफर का इख्तिताम था। लेकिन पौलुस रसूल ने कहा कि मैं मसीह की खातिर मरने के लिए भी तैयार हूं और मैं जाना चाहता हूं, मुझे ना रोको, मैं जाना चाहता हूं। लेकिन जब पौलुस रसूल यरूशलेम में गया और हैकल में नजरात गुजरान रहा था, दुआ कर रहा था कुछ साथियों के साथ मिलकर, तो 7वें रोज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे यहूदियों ने पकड़ लिया जो आसिया से आए थे, आसिया के सूबे से यरूशलेम में आए हुए थे हैकल में। उन्होंने जब देखा कि ये शख्स यहां पर आ गया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, बड़ी हल्लड़बाजी हुई, बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ गए। तो पलटन का जो सरदार था उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। यहां पर जब वो गिरफ्तार हुआ तो फिर खुदा ने उसे नजर आकर रात के वक्त एक पैगाम दिया। अमाल की किताब का 23वां बाब और उसकी 11वीं आयत, उसमें लिखा है कि उसी रात जब वो गिरफ्तार था, खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख, जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी वैसे ही तुझे रोमा में देनी होगी। एक तरफ लोगों का इरादा और मंसूबा यह था कि हम पौलुस को यरूशलेम में जाने से रोकें, कहीं ये मारा ना जाए। दूसरी तरफ खुदा का एक मंसूबा है। खुदा का मंसूबा यह था कि जिस तरह तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, इसी तरह तुझे रोमा में मेरी गवाही देनी होगी। खुदा अपने मंसूबे के तहत उसे यरूशलेम में लेकर आता है और फिर उसके बाद उसे रोम में ले जाने का इंतजाम करवा देता है। यहूदी लोग उसे मारना चाहते थे,
बहुत दफ़ा पलटन के सरदार ने उसे बचाने की कोशिश की, क्लाडियस लूसियास उसका नाम था, उसने कोशिश की कि ये बच जाए और उसे किले में ले गया। फिर उसको मारने के लिए 40 लोगों ने कसम खाई कि हम पर लानत है खुदा की अगर हम पौलुस को ना मारे। और उन्होंने प्लान ये बनाया कि दोबारा से हम जाएंगे उसके पास, पलटन के सरदार के पास, और उसे कहेंगे कि हम दोबारा से इस पर बात करना चाहते हैं। जब वो उसे लाएगा अदालत में तो हम 40 लोग उस पर हमला कर देंगे, उसे मार देंगे। लेकिन पौलुस के भांजे ने ये सब कुछ सुन लिया, उसने जाकर पलटन के सरदार को बता दिया। पलटन के सरदार ने रातों रात उसे कैसरिया भेज दिया। यहां से आज के जो वाक़े का आगाज होता है, जब वो कैसरिया में पहुंच गया। ये खुदा का मंसूबा था, खुदा उसे रोम की तरफ लेकर जा रहा है। लोग उसे रोकना चाहते थे कि ये गैर कौमों में, ये यहूदियों में मारा जाएगा, या यहूदी उसे इकबस एक नबी ने ये नबूवत की थी कि गैर कौम यहूदी जो हैं इसे गैर कौम के हवाले करेंगे। लेकिन खुदा का मंसूबा उसकी नबूवत के मुताबिक ये था कि ये गैर कौम में जाकर मुनादी करेगा, बादशाहों के सामने जाकर मुनादी करेगा। अभी तक पौलुस रसूल यहूदियों में और गैर कौम के लोगों में मुनादी कर रहा था, लेकिन अब उसकी मुनादी को मिशनरी सफर के जो 3 मिशनरी सफर थे उसके इख्तिताम पर एक और मोड़ मिलने वाला था। और वो मोड़ ये था कि पौलुस रसूल रोमी हाकिमों के सामने, गैर कौम के हाकिमों के सामने जाकर मुनादी करे। अब एक नया मोड़ उसकी मुनादी में आ रहा है, और यीशु ने उसे पहले ही इत्तला दे दी कि अब तुमने रोमा में जाकर मेरी मुनादी करने, बड़े दुख में से गुजर कर जाता है, कैद रहता है, मौत में से बड़ी मुश्किल से निकलता है, और आखिरकार रोमी गवर्नर के पास पहले पहुंचाया जाता है। रोमी गवर्नर का यहां पर नाम है फिलिक्स, और उसकी बीवी का नाम है द्रुसिला। गुज़श्ता अतवार हमने एक बादशाह के बारे में सीखा था कि एक बादशाह और मसीहत। बादशाह का नाम आपको याद है? ऊंची बोले, जिसको भी आता है ऊंची बोले। हेरोदिस अग्रिप्पा 1, हेरोड अग्रिप्पा। ये मैंने बताया था कि हेरोदिस आजम का पोता था जिसने यीशु के वक्त बच्चों को कत्ल करवाया था। पिछले द्वार हमने उसके बारे में सीखा था, हेरोदिस अग्रिप्पा 1 के बारे में, कि वो मसीहत में किस तरह रुकावट पैदा करते और आखिरकार खुदा ने उसके अदालत की। आज जिन शख्स का बयान है फिलिक्स और द्रुसिला, ये द्रुसिला जो थी वो हेरोड अग्रिप्पा 1 की बेटी थी, और इसकी शादी पहले एक और बादशाह से हुई, असीमा बादशाह है, उससे इसकी माफ कीजिएगा, अमेसा, ये मौजूदा सीरिया में मौजूद है जगह, वहां के बादशाह के साथ इसकी शादी हुई। लेकिन उसके बाद उसकी शादी फिलिक्स से हो गई। फिलिक्स रोमी गवर्नर था, गैर कौम से था, बीवी यहूदी थी। ये भी हेरोड जो है, हेरोदिस भी असल यहूदी नस्ल नहीं था, लेकिन ये अदूमी यहूदी था। तो उसकी ये बेटी हेरोड यानी पड़पोती थी हेरोदिस आजम की, और हेरोदिस अग्रिप्पा 1 की, जिसने याकूब को कत्ल करवाया था और पतरस को कैद करवाया था, जिसके बारे में गुज़श्ता द्वारा हमने सीखा कि उसकी बेटी थी। इसकी ये दूसरी शादी थी, और फिलिक्स की ये तीसरी शादी थी। फिलिक्स और द्रुसिला दोनों जो थे, उनके बारे में हिस्ट्री ये बताती है कि ये दोनों बहुत गुनहगार लोग थे। फिलिक्स जादूगरी भी करता था, और हिस्ट्री कहती है कि इसने जादू के जरिए से द्रुसिला को उस बादशाह से छीना था। फिर उसके बाद यहूदियों में बड़ा काबिल नफरत था फिलिक्स गवर्नर, और उसके अलावा इसने वो लोग जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जंगल में एक ग्रोह था, मिस्री एक शख्स यहूदी मिस्री था, और उसने कुछ ग्रोह को अपने साथ मिला लिया, हजारों लोगों को, और वो जंगल में रहते थे और मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि यीशु ने भी आना है। तो उन्होंने बगावत कर दी रोमन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसने फिर उन्हें मार दिया। लेकिन जो मिस्री शख्स था वो भाग गया, जो इनका लीडर था। तो ये शख्स यहूदियों में नाकाबिले नफरत था, पसंद नहीं किया जाता था। फिलिक्स और द्रुसिला, उसकी बीवी जो यहूदी थी, जब उन्हें पता चला कि इसको पेश कर दिया गया है, कैसरिया में भेज दिया गया है, तो उन्होंने सोचा कि हम भी इससे सुने कि मसीह का दीन क्या कहता है। दोनों शौहर और बीवी उसको बुलाते हैं। मोटिव क्या है? आगे जाकर लिखा, उसे उनसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद थी।
मसीह के दीन के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन नीयत क्या है कि हम इससे वक्त गुजारें और इससे कुछ पैसे बटोरें, क्योंकि इसके साथ काफी लोग हैं, वो हमें पैसे देंगे। इन सारी बातों में आज थोड़ी देर के लिए हम जो सीखने वाले हैं, मैंने सारा पस मंजर आपको बयान किया है, वो ये है, जो आज का टॉपिक है वो ये है मसीह का दीन और रोमी गवर्नर। जिस तरह से पिछले जब हमने देखा था कि बादशाह की मसीही दीन की मुखालफत और खुदा की अदालत, इस दफा है मसीह का दीन और रोमी गवर्नर। अब मसीह का दीन और खुशखबरी जो है वो रोमन गवर्नर तक पहुंच चुकी है, यानी अब जो हाकिम हैं रोमन गैर कौम के, उन तक खुशखबरी पहुंच चुकी। अब उनका रवैया क्या है जब उनको मसीह की खुशखबरी सुनाई जाती है? और पालूस को जब वो बुलाते हैं तो उसने 3 बातों को उनके सामने पेश किया। लिखा है कि जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था, 3 बातें उसने पेश की जो कि मसीह ईमान की रूह है: रास्तबाजी, परहेजगारी और अदालत। रास्तबाजी के बारे में बादशाह के लिए भी बड़े परेशानी का बायस होगा, गवर्नर के लिए भी, जब उसने सुना होगा रास्तबाजी मसीह में, मसीह के दीन में या क्रिश्चियन फेथ में रास्तबाजी क्या है, राइचियसनेस जो है वो क्या है, ये हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि ईमानदारों के लिए रास्तबाजी चीज क्या है, किसको कहते हैं रास्तबाजी। रास्तबाजी जो है, ये जो यूनानी जुबान का लफ्ज है डिकायोसोने, इसका मतलब है कंडीशन एक्सेप्टेबल टू गॉड, प्योरिटी, सच्चाई, यानी वो हालत जिसमें इंसान खुदा को पसंद आ जाए, वो रास्तबाजी है। अब पालूस इसके बारे में रोमियो के खत में कुछ बयान करता है। रोमियो का खत उसका 3रा बाब में साझा देखें, रोमियो का खत उसका 3रा बाब, इसमें पालूस रसूल रास्तबाजी के बारे में बयान करता है कि इंसान की जिंदगी में वो हालत है या नहीं जो खुदा को पसंद हो। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक पूरा इसी बात को बयान करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने 23वीं आयत को रखूंगा, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये हमारा स्टेटस है, हमारा राइचियसनेस का, हमारी सच्चाई का, हमारी रास्तबाजी का, जिसको हम क्लेम करते हैं, उसका स्टेटस ये है, इंसान की हालत ये है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यानी हम में से हर एक शख्स जो क्लेम करता है कि मैं बहुत रास्तबाज हूं, मैं बहुत सच्चा हूं, हमें इंसान की सही हालत को जानने की जरूरत है कि इंसान की बातनी हालत यह है कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है अपने गुनाह के बायस, अपनी गुनाह आलूदा फितरत के बायस खुदा के जलाल से महरूम और खुदा से दूर है। खुदा की नाराजगी उसके सामने है। मैंने बताया कि राइचियसनेस, रास्तबाजी का मतलब यह है वो हालत जो खुदा को पसंद आ जाए, लेकिन इंसान की हालत यह है कि वो खुदा को पसंद नहीं आ सकता। इसका सलूशन क्रिश्चियन फेथ क्या देता है, मसीह का दीन जो है वो इसका हल क्या देता है। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत उसके 3रे बाब को आगे जब हम पढ़ते जाएंगे, उसकी 24वीं आयत को हम देखते हैं। 24वीं आयत में लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखरसी के वसीले से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हम अपनी कोशिश से खुदा को पसंद नहीं आ सकते, हमारी वो हालत नहीं है कि खुदा के हुजूर में हम पसंद हो सकें, कबूल हो सकें। लेकिन उसका हल क्या है कि फजल के सबब से, ग्रेस, खैरस, ग्रीक वर्ड है खैरस, जिसका मतलब है बेनिफिट, फेवर, अनमेरिटेड फेवर, यानी वो फेवर, वो बेनिफिट, वो फायदा जिसके हम काबिल नहीं, वो खुदा से मिल जाए और यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा के हुजूर में रास्तबाज ठहर जाए। रोमी गवर्नर के लिए यह बड़ा मुश्किल था यह सुनना कि पालूस उसे यह कहे कि इंसान गुनाहगार है। उसने अपनी पूरी कोशिश की, फिलिक्स गवर्नर ने, कि किसी तरह से वो यहूदियों में पसंदीदा बन जाए,
और आखिर में जब पढ़ेंगे 27वें में ये लिखा है कि उसने पालूस को इसलिए कैद में छोड़ दिया ताकि यहूदी खुश हों। हेरोदीस, जितना ये पूरा खानदान था हेरोदीस का भी, वो किसी न किसी तरह से यहूदियों को खुश करने की कोशिश करता रहता था, चाहे उसके लिए उन्हें गलत काम करने पड़े, लोगों को मरवाना पड़े, हर तरह से जायज और नाजायज काम से वो लोगों को खुश करना चाहते थे। और जब पालूस ने उसे कहा कि रास्तबाजी का जो मतलब मसीही ईमान में है वो ये है कि इंसान गुनहगार है और उसे यीशु के वसीले से मखलसी की जरूरत है, उसे खुदा के फजल से, खुदा की फेवर से, खुदा के रहम से मखलसी की जरूरत है, तो ये उसके लिए परेशानी का बायस है। उसके बाद उसने परहेजगारी का बयान किया, मसीह ईमान का एक लाजमी हिस्सा कि जब हम मसीह में ये फेवर पाते हैं कि हम रास्तबाज ठहर गए हैं, तो उसके बाद एक नई जिंदगी का आगाज। रोमी के खत का 6वां बाब इसके बारे में बयान करता है। रोमी के खत के 6वें बाब में हम मसीह में एक नई जिंदगी के बारे में देखते हैं। रोमी का खत उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत के दूसरे हिस्से में है, हम जो दूसरी आयत में, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। परहेजगारी ये कि जब हम मसीह के वसीले से रास्तबाज ठहर गए हैं, मसीह के खून के वसीले से हमारे गुनाह धुल गए हैं, हम माफ किए गए हैं, हम पर फेवर हुई है, हम पर रहम हुआ है, तो दूसरा स्टेप यह है कि हम परहेजगारी करें, हमारी जिंदगी एक तब्दील शुदा जिंदगी हो, हमारी जिंदगी एक नई जिंदगी हो। और इसमें लिखा कि हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर आइंदा को उसमें जिंदगी गुजारे। एक नई जिंदगी का आगाज, तब्दीली का आगाज है, जिसमें पालूस रसूल करंथियों खत के बाद 6वें बाब में ही आगे जाकर फिर कहते हैं कि बस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। 12वीं आयत में ये जिक्र है कि बस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर बादशाही ना करे। फिर उसके बाद आगे लिखा, अपने आजाद नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो और अपने आजाद रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले कर दो। ये परहेजगारी कि एक नई जिंदगी का आगाज। उसके बाद उसने अदालत का बयान किया, जो हम में से हर एक का ईमान, हर एक शख्स चाहे वो मसीही मजहब से है या नहीं है, जो खुदा पर ईमान रखता है वो ये जानता है कि खुदा अदालत करेगा, खुदा सबका हिसाब करेगा और हर एक शख्स को उसके सामने हाजिर होना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले के लिए मुकद्दस पालूस रोमी के खत में कहते हैं कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुकाशवा में खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा, और इसमें खास तौर पर हमें मुकद्दस पालूस रसूल इस अदालत का जिम्मेदार यीशु को, कि अदालत यीशु करेगा, वो मुनसिफ है। ये तीनों बातें जो हैं, सबसे पहली रास्तबाजी, परहेजगारी और अदालत, ये तीनों फिलिक्स के लिए तकलीफ का बायस थी कि मैं खुद रास्तबाज नहीं ठहर सकता, मुझे नई जिंदगी का आगाज करना होगा, परहेजगारी करनी पड़ेगी और मेरी अदालत होगी। ये तीनों बातें फिलिक्स के लिए नाकाबिले कबूल थी। उसका रिस्पॉन्स क्या था, रद्द अमल क्या था? दहशत खा गया, डर गया, कांप उठा। डरना और कांपना पालूस को चाहिए था कि पालूस एक गवर्नर के सामने, जिसने फैसला करना है, उसके सामने खड़ा और उसको एहसास दिला रहा है अदालत का, उसको एहसास दिला रहा है रास्तबाजी का, उसको एहसास दिला रहा है कि तेरी जिंदगी ठीक नहीं। डर गया, कांप गया, दहशत खा गया। इसके लिए जो डर का जो लफ्ज है ग्रीक में, उसको थ्रोन इनटू फियर, कि उसे खौफ में धकेल दिया गया, डर गया। ये अल्फाज किसी भी शख्स के लिए डर का बायस हो सकते हैं, हमें से किसी शख्स के लिए भी। जब हमें एहसास दिलाया जाए कि मैं गुनाहगार हूं, जब मुझे यह एहसास दिलाया जाए कि मैं दुरुस्त काम नहीं कर रहा, मैं खुदा की मर्जी के खिलाफ काम कर रहा हूं, मेरी गलती का एहसास मुझे दिलाया जाए और मुझे यह एहसास दिलाया जाए कि इस गलत काम के लिए मेरी अदालत होगी, तो दो तरह का रद्द-ए-अमल आ सकता है। या तो मैं डर कर फिलिक्स की तरह हो जाऊं, उसने कहा चला जा, फिर फुर्सत पाकर तुझे बुलाऊंगा, या मुझे एहसास गुनाह हो जाए और मैं उस पर तौबा करने का सोचूं। ये तीनों बातें रूहुल कुदस के वसीले से मुमकिन होती हैं। ये तीनों बातें कायलियत जो है, जो कि पालूस हमें यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुदस के बारे में बताई।
यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि जब वो रूह कुदस को भेजेगा तो वो 3 बातों के लिए कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा ईमानदारों को। 3 बातें क्या थी कि वो जो यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 8वीं आयत में कि रूह कुदस जब आएगा तो वो रास्तबाजी के बारे में और अदालत के बारे में, गुनाह के बारे में कायलियत देगा, कायल करेगा। और ये रूह कुदस का पैगाम था जो पौलुस के जरिए से फिलिक्स को मिला। रूह कुदस बोल रहा था, रूह कुदस पौलुस से ये बात करवा रहा था बड़ी दिलेरी के साथ, जो यीशु ने से कहा था कि तुझे रोमा में मेरी गवाही देनी होगी। उसके मुताबिक रूह कुदस पौलुस को इस्तेमाल कर रहा था कि वो गवर्नर को बताए कि उसे तौबा की जरूरत है। खुदा का कलाम रूह कुदस के वसीले से हमारी जिंदगियों को इसी तरह से आईना दिखाता है। खुदा का कलाम एक आईने की तरह है। रूह कुदस हमें एहसास दिलाता है कि हमारी जिंदगी में गुनाह है, हमारी जिंदगी में कमजोरी में जवाबदेह होना होगा। रूह कुदस हमें से हर एक को एहसास दिलाता है, लेकिन फिलिक्स की तरह रवैया 2 तरह का हो सकता है। एक तरफ पतरस का पैगाम है, पहला वास, जब उसने लोगों को बताया यीशु के बारे में कि तुमने उस यीशु को जिसको खुदा ने मसा किया और खुदावंद किया उसे मसलूब कर दिया, तो लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें। और पतरस ने उन्हें खुशखबरी की दावत दी, यीशु पर ईमान लाने की दावत दी। दूसरी तरफ फिलिक्स को जब पौलुस ने एहसास दिलाया कि तू गुनाहगार है और तुझे तौबा की जरूरत है, नहीं तो अदालत का सामना करना होगा, तो वो दहशत खा गया। दोनों तरह के रवैये में से आज हमें फैसला करना है कि हमने क्या करना है। रोमी गवर्नर ने उससे कहा फिर तुझे बुलाऊंगा। बाज़ औक़ात जब रूहुल कुदस हमारे दिल को चीरता है, दिलों को चोट करता है, और जब उन लोगों को पतरस ने कलाम सुनाया और 3000 लोग मसीही हुए, तो लिखा कि उनके दिलों पर चोट लगी। और चोट लगने के जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है नीडल का प्रिक करना, यानी सुई का चुभोया जाना। और जब भी सुई चुभोई जाती है हम फौरन अपना हाथ पीछे करते हैं। जो लोग वो शुगर टेस्ट करते हैं उन्हें पता है वो किस तरह से करते हैं। जब आदत हो जाती है तो फिर तो आसानी से कर लेते हैं, शुरू में ऐसे उंगली पीछे खींचते हैं। तो प्रिक करते हैं ना जब, तो उस वक्त दर्द होती है, चोट लगती है। तो इसी तरह रूहुल कुदस जो है वो बाज़ औक़ात हमें एहसास दिलाता है कि मैंने गलत काम किया है। रूहुल कुदस हमें तंबीह करता है, हमें कायल करने की कोशिश करता है, जिस तरह पौलुस जो है वो कायल करने की कोशिश कर रहा था रोमी गवर्नर को। इसी तरह से पतरस जो है वो एक बड़ी भीड़ को कायल करने की कोशिश करता है कि तुमने गुनाह किया है। लेकिन उस भीड़ में लोगों के दिलों पर चोट लगी, उन्हें प्रिक किया खुदा के कलाम ने, और उन्होंने कहा हम क्या करें। उन्होंने तब्दीली के लिए दरखास्त की कि हमारी रहनुमाई कर, और पतरस ने कहा कि यीशु पर ईमान ले आओ। इस तरफ दूसरी तरफ उसको जब चोट लगी तो उसने कहा कि फिर आ, मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। बाज़ औक़ात हम तौबा के मौके को मिस कर देते हैं। फिलिक्स ने और उसकी बीवी द्रुसिला ने तौबा के मौके को खो दिया और फिर कभी भी उसके पास ये मौका नहीं आया। गवर्नरशिप खत्म हो गई, चला गया, उसकी जगह नया गवर्नर आ गया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि फिलिक्स गुलाम था। इसके भाई की बड़ी वाकफियत थी नीरो के साथ, जो बादशाह था रोम का। उसने अपने भाई की सिफारिश से ये ओहदा हासिल किया, लेकिन आखिरकार उसे दोबारा से तनज़ली की तरफ जाना पड़ा। उसने वो मौका खो दिया जो उसके पास था कि उसको खुशखबरी मिली, लेकिन उसको कबूल ना कर पाया। हम नहीं जानते कि हमारे पास दोबारा मौका होगा या नहीं होगा। जब भी खुदावंद हमें एहसास दिलाए कि हमने गुनाह किया है, जब भी रूहुल कुदस हमें ये प्रिक करे, हमारे दिलों को चोट लगे कि मैंने ये गलत काम किया है, खुदा के आगे तौबा के लिए झुक जाएं, खुदा से माफी के तलबगार हो जाएं। हम मौका खो देते हैं, फिर कभी भी मौका हाथ नहीं आ सकता। ज़बूर 95 में लिखा है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसा मसा और मरीबा में किया था।
वो हम गीत गाते हैं, जी आज दे दिन सब सुन दे आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी। जब भी हमारी जिंदगी में रूह कुदस ये एहसास दिलाए, खुदा का कलाम हमें एहसास दिलाए कि मैंने गुनाह किया है, फौरन तौबा के लिए तैयार हो जाए, दिलों को सख्त ना करे। जिस तरह फिलिक्स दुरुसिला ने दहशत गए, डर गए, कांप गए, इतना खतरनाक काम है। मैंने उसको फौरन अपनी जिंदगी नजर आ गई उसमें, जब पौलुस बता रहा था तो उसे अपनी जिंदगी नजर आ गई कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। पौलुस ने पहले तो रास्तबाजी का बताया कि कोई भी गुनाहगार, सब ने गुनाह किया हुआ है, सब खुदा के जलाल से महरूम हैं, सिर्फ यीशु के वसीले से माफी है। तू सच्चा नहीं है, यीशु के वसीले से सच्चा हो सकता है, खुदा को पसंद आ सकता है। दूसरा उसने परहेजगारी का बता दिया कि भाई यीशु में जो जिंदगी है वो तो एक नई जिंदगी है, तौबा की जिंदगी है, पुरानी इंसानियत को दफन करना है, नई इंसानियत के साथ जिंदा होना है, गुनाह को अपने जिस्म पर बादशाही नहीं करने देनी। और फिर उसके बाद अदालत का बयान दे दिया कि अगर तू नहीं मानेगा तेरी अदालत होगी। दहशत खा गया, उसने कहा नहीं अब नहीं मैं कर सकता। उसके पास मौका था कि वो उस वक्त खुशखबरी को कबूल कर लेता। अमाल की किताब में हमें ऐसे और भी वाक़यात मिलेंगे जिनमें जो जब हाकिमों के सामने पौलुस पेश हुआ तो पौलुस ने दलेरी के साथ गवाही दी, लेकिन जो हाकिमीन थे वो तो यीशु को कबूल ना कर सके। लेकिन बहुत से और लोग पौलुस के वसीले से तौबा करके यीशु के पास आ सके। आज का पैगाम हमें जब रोमी गवर्नर और मसीह की खुशखबरी का पैगाम दोनों के बारे में बताता है, तो आज मसीह की खुशखबरी जो है वो ना सिर्फ अच्छी बातों की हमें खबर देती है, हमारे गुनाह को भी जाहिर करती है। खुदा का कलाम जो है वो हमारे गुनाहों को हमें बताता है। हम सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। बहुत दफ़ा पादरी साहबान अगर दलेरी के साथ खुदा के कलाम में से कोई ऐसी बात बताएं जो हमारे दिलों पर लग रही हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बात की गई। मैंने पहले भी एक दो दफ़ा ये बात आपको बताई है। मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मेरा एक कज़न, उसकी वालिदा की मेमोरियल सर्विस थी और पादी साहब पैगाम दे रहे थे और हम दोनों अगले बेंच पर बैठे हुए थे, मैं और मेरा कज़न जिसकी वालिदा की डेथ हुई। तो जब वो कलाम सुना रहे थे तो कलाम के दौरान, पैगाम के दौरान ही मेरा कज़न कहता पादी साहब मैनू लांडे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लग रहा है तो ये आपके लिए है। खुदा का कलाम जो है वो हमें दिखाता है हमारी असली सूरत, हमारी जिंदगी, हमारा बातन हमारे सामने खोल के रख देता है। जब फिलिक्स और द्रुसिला पैगाम को सुन रहे थे तो उन्हें अपने गुनाह की संगीनी का अंदाजा हुआ कि हम कितने गुनाहगार हैं। उन्हें एहसास हुआ कि हम कहां पर हैं, किस स्टेटस में हैं। लेकिन उन्होंने वो मौका खोया। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद की मेज पर आने वाले हैं। हमारे पास मौका है कि जब रूहुल कुद्दस हमें एहसास दिलाता है कि हमने गुनाह किया है तो हम तौबा कर सकते हैं। इस मौके को ना खोएं। जब भी मौका मिले, जब भी वक्त आए, जब भी एहसास हो कि मैंने गलती की है, खुदा के सामने झुक जाए। यीशु के खून के वसीले से, उसके फजल के वसीले से हमें मखलसी और गुनाहों की माफ़ी मिलती है। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हमारा रवैया फिलिक्स की तरह ना हो, जिसने कहा कि फिर तुझे बुलाऊंगा, बल्कि हमारा रवैया उन लोगों की तरह हो जिन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं। तेरा शुक्र हो कि हमारे पास मसीह की खुशखबरी है जो हमें बताती है कि मसीह ने मेरे लिए, हम सब के लिए अपनी जान दी और वो हुक्मों की दस्तावेज जो मेरे और हम सब के खिलाफ थी उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया। तेरा शुक्र हो यीशु कि तूने हम सब के लिए जान दी और हुक्मों की दस्तावेज को मिटा दिया, हुकूमतों और अख्तियारों का बरवला तमाशा बनाया। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम इस रोमी गवर्नर की तरह अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि जब तेरा कलाम हमें चोट लगाता है, जब तेरा कलाम हमें एहसास दिलाता है कि मैंने गुनाह किया है, तो हम माफ़ी मांगने वाले बन जाएं। खुदावंद तू हमें से हर एक को माफ़ कर,
हमारे गुनाहों को तो यीशु के खून से धो दे और पाक कर, ताकि हम पाकीज़गी की हालत में आज तेरी मेज़ पर आने के काबिल हो सके। खुदा तू रहम कर, आइंदा के लिए भी परहेजगारी, एक नई जिंदगी जिसमें हम अपने आज़ाद खुदा की रास्तबाजी के लिए उसके हवाले कर सकें, ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार कर। गुनाह हमारे फानी बदनों पर आइंदा से बादशाही न करे, हम उसके अख्तियार में न रहें, बल्कि हम उस पर गालिब आए हर एक के साथ। हमारे घरानों में कोई भी ऐसा शख्स अगर मौजूद है जिसका दिल सख्त है, तो खुदावंद हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। हमारी कलीसिया में जितने लोगों के दिल सख्त हैं उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तो दिलों को नरम कर दे, दिलों को तोड़ खुदावंद, ताकि वो मसीह को कबूल करें, तौबा कर सके, एक नई जिंदगी का आगाज कर सके, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 140 गाएंगे, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। गीत नंबर 140, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। 140। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदा की हुजूरी में पेश करें। Oh
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फजल किया, रहम किया, सेहत दी ताकि हम तेरी हजूरी में आ सकें। जितना वक्त खुदावंद हमने तेरी हजूरी में गुजारा है तो तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, इन्हें कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, सभी को रूहानी तौर पर और दुनवी तौर पर बहुत सी बरकतें और खुशहाली दे। हमारी कलीसिया को एक जिंदा कलीसिया, गवाही देने वाली कलीसिया बना, और खुदावंद हमें बतौर ईमानदार कौमी सतह पर मसीह की खुशखबरी की मुनादी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद दुआ करते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक हो, हम सब तुझ में महफूज रहें और बरकत पाएँ। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख तकलीफ हमारे घरानों से यीशु के नाम से जाते रहें, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। एल्डर साहबान आ जाए मेरी मदद के लिए।
میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند کی میز پر آنے کے لیے اس روٹی اور شیرے کی تقدیس کے لیے دعا کریں۔ اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں وہ چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے عزیز بیٹے خداوند یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ بدن اس کے بدن سے پاک صاف کیے جائیں اور ہماری روحیں اس کے نہایت بیش قیمت خون سے دھوئی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ خداوند ہم اس روٹی اور شیرے کی دعا کرتے ہیں تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون کی قدرت سے اس کی تقدیس کر، تاکہ اس روٹی کو کھانے اور شیرے کو پینے کے وسیلے سے ہم اپنی زندگیوں سے تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی موت کا اظہار کر سکیں اور آج تیرے گھر سے ایک نئی زندگی کے ساتھ واپس لوٹ سکیں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جس رات پڑھوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، جب تک میں واپس نہ ہوں میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ میں بھی خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو سامنے آنے کی خداوند کی میز پر شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن اپنی لائن کے ساتھ میں درخواست ہے کہ آپ آئیں اپنی باری کے ساتھ اس کو لیں۔
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पानी को रात के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उसको रात के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। मट्टी को तुम्हारे जैसे हाथों से अपने संभाले, मट्टी को तुम्हारे जैसे हाथों से अपने संभाले, योनि गला में खुदावन तूने हमें और निखारे, योनि गला में खुदावन तूने हमें और निखारे, ले तुझे ले खुदा रो मुझे ले मुझे ले खुदा रो मुझे ले, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदा रो मुझे छू। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। आलूदगी जिस्म जाती रूखी दूर कर दे, आलूदगी जिस्म जाती रूखी दूर कर दे, खौफे यहाँ बाहो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे, खौफे यहाँ बाहो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे, मुझे दो खुदा रो मुझे दो, मुझे दो खुदा रो मुझे दो, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदा रो मुझे छू। ये कुछ दूसरी लाइन की तरफ आ जाए, जब दूसरी लाइन खाली हो तो इधर आ जाओ और फासले को दो मेंटेन रखें। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने दिया है, जो कुछ उसने मुझे दिया है, मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ।
जीवन की ज्योत जलाऊं जैसे जले ज्योत तेरी जीवन की ज्योत जलाऊं जैसे जले ज्योत तेरी सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी मुझे उतारो मुझे मुझे उतारो मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे उतारो मुझे यीशु ने कहा क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। जिसको आप लोगों को उसके बाद भी इसके साथ शामिल होते हैं हम तीनों। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा।
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक रब्बी ज़िंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुरजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और उनकी रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत कटे हुए आज़ा हैं। तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ए आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज़ करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक कमाल तूने पेशतर से हमारे करने को तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम का इज़्ज़त व ताज़ीम और बरकत होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ए खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हम करते हो तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते हो, तेरा जलाल ज़ाहिर करते और तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ए मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आना है। आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में खड़े होकर मिलकर शरीक हों। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। जब हम बाहर जाएंगे तो ज़रूर अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ज़रूर मेंटेन रखें। और शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ इस सारे पब्लिक मीटिंग का जो अमल है उसको प्रैक्टिस किया। खुदा का शुक्र करते हैं हम सब आ सकें। ज़रूर अपने ज़िंदगी में हम इस SOPs को और इस डिसिप्लिन को ज़रूर ढालें ताकि आइंदा भी जब हम पब्लिक मीटिंग में शामिल हों तो इसी तरह से हम डिसिप्लिन के साथ करते रहें। शुक्रिया।